ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? तो सेंटर फॉर आईएएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जहाँ से कई ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं इस यूनिवर्सिटी से, कई माने ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं, वो पिछले कई सालों से डिफंक्ट कंडीशन में था। उसमें जो भी बच्चा क्वालिफाई करता है, जो भी उसके टेस्ट को क्लियर करता है, उसके लिए जो कोचिंग होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब सरकार देगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है। रिसर्च स्कॉलर्स का मुद्दा हमारा कोर मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों पे हम इस बार के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हम ये आश्वासन देते हैं कि हम जीत के आएंगे। जो पुराने हमारे मैनिफेस्टो के जितने प्रोमिसेस थे सारे के सारे लगभग कंप्लीट किए। जो सबसे बड़ा एक वादा जो हम लोगों ने उस टाइम किया था कि एक नया बॉयज़ हॉस्टल और एक नया गर्ल्स हॉस्टल, वो हमारे सीएम, पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने साथ के साथ पूरा किया। कुछ एक दिनों बाद आपको हॉस्टलों का काम नज़र भी आएगा, स्टार्ट होगा और पूरे मॉडर्न तरीके से फुल फ्लैज जो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल हैं उसमें सभी मतलब एक प्रॉपर न्यू टेक्निक के तरीके से वो बनेगा। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ CYSS ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ 2 MLA ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ CYSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ CYSS ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। CYSS ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? जी। पिछली बार हम काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल मुद्दे लेके आए थे जो हमने एड्रेस भी कर दिए थे। हॉस्टल का मुद्दा उनमें से एक बहुत ही फोकल पॉइंट था हमारे इश्यूज़ का। वो सब मैनिफेस्टो ख़त्म करने के बाद अब हम सोच रहे हैं मेजरली एकेडमिक इश्यूज़ के बारे में। तो सेंटर फॉर आईएएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जहाँ से कई ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं इस यूनिवर्सिटी से, कई माने ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं, वो पिछले कई सालों से डिफंक्ट कंडीशन में था। तो उसमें जो भी बच्चा क्वालिफाई करता है, जो भी उसके टेस्ट को क्लियर करता है, उसके लिए जो कोचिंग होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब सरकार देगी। और इसके अलावा प्लेसमेंट सेल का रीस्ट्रक्चरिंग हम करने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट लेड प्लेसमेंट सेल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के लिए जो UBS और UIT के लाइंस पे होगा। इन मुद्दों पे मेजरली हम आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम कई चीज़ें करने वाले हैं। हॉस्टल्स में हम जिम्स बनाने वाले हैं, हाईटेक जिम्स बनाने वाले हैं। गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, ऐसे पसीने में जैसे पसीने में हम लदे हुए हैं, उसी तरह से हॉस्टल में लोग खाना खा रहे हैं गर्मी में। तो हॉस्टल्स की मेसेज में AC का अरेंजमेंट होगा। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है। रिसर्च स्कॉलर्स का मुद्दा हमारा कोर मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों पे हम इस बार के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हम ये आश्वासन देते हैं कि हम जीत के आएंगे। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CYSS ਦਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ CYSS ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? जी, मेरे साथ CYSS के कैंडिडेट ही हैं
और ये बात पिछली बार के कैंडिडेट इस बार के प्रेसिडेंट आयुष खटकर हैं। और अगर मैं ये बात कहूँ कि मैनिफेस्टो में क्या रह गया था कंप्लीट करने से, लगभग 1000 में से 999 चीज़ें पूरी हो चुकी थी। एक दो छोटे मुद्दे जो हम इस बार एड्रेस करेंगे वो थे। पर मैं सच बात कहूँ, इस बार जब हम मैनिफेस्टो बनाने बैठे थे तो हम यही सोच रहे थे कि हमने सब कुछ तो कर दिया, अब रह क्या गया। तो जो मुद्दे अब यूनिवर्सिटी में हैं वो हमने ढूंढे हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि हमारी पिछली सरकार का या सत्ता का मैं आपको बताता हूँ सर इस बारे में, जो पुराने हमारे मैनिफेस्टो के जितने प्रोमिसेस थे सारे के सारे लगभग कंप्लीट किए। जो सबसे बड़ा एक वादा जो हम लोगों ने उस टाइम किया था कि एक नया बॉयज़ हॉस्टल और एक नया गर्ल्स हॉस्टल, वो हमारे सीएम, पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने साथ के साथ पूरा किया और 50 करोड़ रुपए पंजाब यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आ चुके हैं। और जल्दी आपको अभी कुछ एक दिनों बाद आपको हॉस्टलों का काम नज़र भी आएगा, स्टार्ट होगा और पूरे मॉडर्न तरीके से फुल फ्लैज जो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल हैं उसमें सभी मतलब एक प्रॉपर न्यू टेक्निक के तरीके से वो बनेगा। और जितने आगे के हमारे मैनिफेस्टो प्रोमिसेस हैं, हमारे डेडिकेटेड जो हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं दिव्यांश ठाकुर, पिछले साल पूरा साल जब हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया था उस टाइम भी साथ में थे, उनमें भी इनका पूरा रोल है कि जो हमारे पूरे मैनिफेस्टो पिछला प्रोमिस किया है और इस बार जो नया है उसमें भी सब लोग हम एक साथ मिलकर दोबारा कंप्लीट करेंगे। दोबारा अपने काम के नाम पर वोट मांगने के लिए उतरे हैं और आगे हमेशा अपनी जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है उसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਹੈ? जी टक्कर दे विच पार्टीज, देखिए यूनिवर्सिटी में पार्टीज 3 हैं हमारे सामने जो खड़ी हो रही हैं। उनमें भी आप रख लें कि SY है जिसका वजूद इस वक्त लगभग कम है। रही बाकी 2 पार्टियां, वो 2 पार्टियां नहीं, वो एक ही पार्टी है। एक ABVP है और दूसरी NSUI में आ चुकी है ABVP है। तो मुझे लगता मर्ज हो है चुकी है। जी ABVP का कैंडिडेट लेके आए हैं वो, जो एक दिन 3-4 दिन पहले उठा के लेके आए हैं। पैराशूट कैंडिडेट लेके आए हैं, जैसे कि उनका कैंडिडेट, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो ये सब मुद्दे हैं, तो हमें नहीं लगता हमारा कोई कंपटीशन है सिवाय हमारे खुद के। पिछली बार का मार्जिन बस ये है डबल या ट्रिपल करने का की रेस में। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰਕਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? 1000 वोटों के साथ कम से कम। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਜਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਹਟਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।